अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना इजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। ये मेरे जो ख़ास मेहमान हैं उनकी दुनिया में रंग ही रंग है, क्योंकि वो हैं एक आर्टिस्ट और उनका जो आर्ट है उसको जब भी मैं देखती हूँ ना किसी के घर पे मुझे समझ आ जाता है जी कि ये अहमर फारूक की पेंटिंग है। सो वी हैव द वन एंड ओनली अहमर फारूक टुडे। I'm very well. How are you? Good. आपका काम मैं देखती रहती हूँ अक्सर, और अक्सर लाहौर के तो बहुत घरों में अब नजर आने लग गया है। जब आप ऐसे किसी घर में जाते हैं तो कैसा लगता है? Actually, it's a very good feeling कि आपका काम एक अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोगों ने अपने घर में उसको एक स्पेशल जगह दी हुई है, because home is a very very personal space and वहाँ पे अगर वो आपका काम लगा रहे हैं, so that naturally gives you a booster. आई रिमेम्बर, आई थिंक आज से कोई 2 साल पहले तकरीबन ईद की ही एपिसोड हमने रिकॉर्ड की थी। बिल्कुल। और उसमें और भी आर्टिस्ट थे आपके साथ मौजूद, इम्तिसाल भी थे। बिल्कुल। एंड बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। लेकिन उन 2 सालों के दौरान ही इसी अरसे में मैंने आपको ग्रो करते देखा है एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, और आपके काम में भी मजीद और मैच्योरिटी आई है। So was there anything specific that made it happen? I think it's very important for any artist to keep on producing work. You have to produce work, you have to keep on delivering. आप जैसा भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, but as an artist it's very very important to keep on delivering. So उससे ये होता है कि for example वो 2 साल की जर्नी के अंदर it was very interesting for me. I did a show in America. Yes. I did couple of shows in Pakistan. उसके अलावा I did couple of shows मैंने यूरोप में भी किए हैं। सो वो चीज़ें चलती रही और आई थिंक एक स्नोबॉल इफेक्ट आ जाता है कि एक चीज़ से आगे चलता जाता है। सो आई थिंक that's very very good and important for any artist to keep on producing, and that's what I do. I also have a solo show coming. I was just coming to that. Yeah. अहमर का सोलो शो होने वाला है, कितने एक्साइटेड हैं आप? I'm very excited and I'm nervous at the same time because मैंने काफ़ी देर से लाहौर में सोलो शो नहीं किया है। So all of my, because I am from Lahore and I have a lot of friends and family in Lahore, so they all are going to come and look at my work. So I'm kind of a little nervous because वो Instagram और social media पे तो देखते ही रहते हैं. So they're going to be around 14-15 pieces. So it's a huge body of work which I'm doing. So at the same time I have couple of pieces जो कि उसके अंदर जैसे मैं एक sculpture कर रहा हूँ, स्टील का sculpture। अच्छा, आप कर रहे हैं वो? Yeah, so I'm also doing a sculpture। उसके बारे में बताएं। So that's so I haven't done a sculpture in again a very long time. So इस time solo show में मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं की हुई हैं। So जो steel sculpture है, that's it's a steel sculpture which is coming out of exposed concrete। Right। And then उसके ऊपर it's hand painted too। So there's exposed steel and then there is hand painted. So I've basically mixed my painting and sculpture into one art piece. एक स्कल्पचर, एक ऐसा मुजस्मा बनाना जो स्टील का हो। बिल्कुल। इसमें बहुत फिजिकल एफर्ट, मेहनत बहुत लगती है। Absolutely, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ कि फिजिकली भी आपके अंदर से एक एनर्जी आती है। कभी होता है कि आपने पेंसिल भी उठानी होगी, so you'll just feel tired that oh मेरे से नहीं उठाया जा रहा, I'm just tired, I don't want to paint. But then when you're so charged up and you're inspired and everything, it doesn't really matter. आप स्टील के स्कल्पचर बना लें या पत्थर के स्कल्पचर बना लें, it doesn't really matter. You're just there doing it at it. So it just comes from within. So there's no set answer for that कि कितना टाइम लगता है। अच्छा, ये जो 14 पीसेस हैं, एक पीस की तो बात हो गई, बाकी जो 13 पीसेस हैं, उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। So most of the work is canvases because I love working on canvases. I'm also doing one pottery piece. Yeah. So the pottery. That's amazing. Yes. So this time I'm trying some new things. So the pottery जो है, that's inspired by the Gandhara civilization. Lovely. So एक पुरानी pottery को मैंने लेके उसको मैंने replicate किया है Gandhara civilization को, but on top of that. It's a Gandhara inspired piece. Yeah. Because the entire show is about safe spaces for marginalized communities of Pakistan. Theme ये है। थीम ये है। सो उसको मद्देनजर रखते हुए, बिकॉज एक पॉट है और हम एक अब हर मार्जिनलाइज कम्युनिटी ने अपनी अपनी सेफ स्पेस बनाई हुई जहाँ पे दे कैन बी देमसेल्व्स एंड दे कैन प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजियस थिंग्स, बिलीव्स और व्हाटएवर दे आर। सो वो पॉट एक सिंबल है
एक सेफ स्पेस का कि पॉट के अंदर आप जो मर्जी डाल लें, बाहर से वो एक पॉटी नजर आएगी आपको, अंदर उसके क्या है ओनली द पर्सन। मगर आपके बहुत सारे आर्ट में यही मैसेज नजर आता है अमूमन। Absolutely. Because most of my work is about people around me. It's about Pakistani issues. पाकिस्तानी सोसाइटी के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि हम दिखाते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। सो इट्स मोस्टली अबाउट दैट। और ये जो शो है ये भी एक इसी तरह एक उसी की डाइवर्जन है कि द सोसाइटी से बाहर से हम एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, बट उसके अंदर माइनॉरिटीज़ भी हैं, बट वो माइनॉरिटीज़ को क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते फुली, सो उन्होंने एक अपनी सेफ स्पेसेस बनाई हैं, वे दे कैन बी देमसेल्व्स एंड दे कैन प्रैक्टिस देयर ओन थिंग्स विदाउट एनी फियर। अच्छा, तो ये हो गए अब 14 पीस से 2 पीसेस की बात हो गई। एक स्टील स्कल्पचर है, एक पॉटरी पीस है, गंदारा इंस्पायर्ड, अब रह गए तकरीबन 12 पीस। उसके बारे में पता है? So वो जो बाकी canvases हैं, again they're canvases, they're all canvases, they're paintings, and so they each canvas speaks about whatever happens in that space. So I have interviewed my like people from the marginalized communities. I've interviewed them. अच्छा, आपने research की है? Yes, I have, because all of my work is research based. मैं कभी भी ऐसा और उसमें क्या पता चला? So basically मैं उनसे जो सवाल पूछे, उनसे ये पूछे कि जी आपकी safe space क्या है? For that marginalized community, आपकी safe space क्या है, और and what do you guys do there? So because I don't come from a certain marginalized community, so I don't know about their safe space. For example, अगर आपकी कोई safe space है, आपकी safe space आपका अपना घर है, अब अपने घर में क्या करती हैं, I wouldn't know as an outsider. I would only know बाहर से मैं फिर रहा हूँगा, सड़क से देखूँगा, अच्छा घर है. I wouldn't know what Hina is doing inside the house. Right. So I got to know them, and then I figured out कि I mean, they do celebrate a lot of things. I mean, हमें लगता है कि जी एक उनके बहुत त्यौहार होते हैं। हाँ, त्यौहार हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे होली होती है, जैसे क्रिश्चियंस के क्रिसमस डिनर्स होते हैं, लेकिन वो भी वो सप्रेस होकर कर रहे होते हैं क्या? ये सवाल आपने किया? Absolutely. So there is some kind of a fear there. I mean, they want to celebrate it, but वो चार दीवारी के अंदर वो सब कुछ कर रहे हैं, but वो अपने उस चार दीवारी के अंदर डर के आएंगे, वो डर के आएंगे, but once they're there, बट फिर भी बैक ऑफ देयर माइंड देयर इज सम काइंड ऑफ डर के कोई अटैक ना हो जाए, पुलिस का छापा ना पड़ जाए, या कोई एक चीज़ कोई ऐसी हो रही है जो कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है और नेबर कंप्लेन करते हैं, सो एक फेयर बैक ऑफ द माइंड होता है, राइट, एंड सो दैट वाज अ बिट सैड टू हियर, बट देन दे मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट दे हैव. सो द वर्क अबाउट द होल शो इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग marginalized communities and their safe spaces. तो ये जो 12 कैनवसेस हैं, इसमें जो कहानी आप बयान कर रहे हैं, उनकी शायद परेशानी, इशू, अंडरलाइंग इश्यूज जो है, वो किस तरह से हर एक कैनवस पे आपने रिप्रेजेंट किया? So I'm not representing the hardships of those marginalized communities. I am highlighting and celebrating how these communities have been so brave and they have created their own safe spaces to celebrate their own things. अच्छा, आप उसकी सेलिब्रेशन वाले एलिमेंट को दिखा रहे हैं. They're helping each other, they're supporting each other. Like for example, let's talk about women of these countries. That's also a marginalized community in a way, right? Very true. So हमारे यहाँ पे मुल्क में औरतों ने अपनी communities बनाई हुई हैं, जैसे किटी पार्टीज कह लें, या आप कर लें कोई कुरान क्लास होती है जहाँ पे सिर्फ औरतें जाती हैं, and then they sit down, they read Quran, and then वो एक जो भी सबके common interest, and then they can be themselves. They don't have to cover themselves, and you know they can talk freely and everything and all of that. So एक वो marginalized community हो गई, and then there is a certain class, for example, जैसे Christian community है, so they have their own get together at their churches and everything. उन्होंने वहाँ पे एक अपनी एक safe community बनाई जहाँ पे उनके अपने function हो रहे होते हैं. And then we have Hindus. Yes. So I've spoken to a couple of people from the Hindu minorities, and they have also created their own safe spaces. I mean, they're not really mandir, but you know they have an area where they can go and practice their religion freely. They can do their own things. जो भी वो करना चाहते हैं. Exactly, whatever they do. ठीक. तो ये 12 कैनवस में जब आप इन 12 कैनवसेस में जब इनकी कहानी बयान कर रहे थे, the good side, the celebration part, the exciting part, तो क्या आपने थोड़ा अगर बताना चाहें कि इस कैनवस में मैंने ये किया, इसमें ये किया, ये जो 12 कैनवसेस की बात हो रही है. Okay, so for example, एक कैनवस है which is very colorful and bright, and that I was inspired by the transgender community.
of Pakistan. So I also interviewed them. I met a couple of people from the transgender community, and then I spoke about them. And it's a whole different world. उन्होंने एक अपनी स्पेस उन्होंने एक अपनी स्पेस बनाई हुई है, उनका अपना सिस्टम है कि दे सपोर्टिंग ईच अदर. अभी आपने इस चीज़ के बारे में ऑफ कोर्स दोस्तों से भी बात की है जी. लोग आपको रोकते नहीं कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं एक आर्ट शो में दिखाने के लिए, एंड स्पेशली एज अ सोलो आर्टिस्ट जहाँ पर आपकी थीम को बहुत लेंदी तरीके से डिस्कस भी किया जाएगा, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आफ्टर टॉक भी होगा, और थोड़ा सा बैकलैश भी आ सकता है. बिल्कुल. To my surprise, because I was inviting some people that I have an upcoming show, and I would like you guys to be there, and I'm talking about the educated class here, right? The class which is well traveled, and so I was. उसमें भी अक्सर इस बात को लेकर काफी तनकीद होती है हमारे माशरे में. No, so तनकीद हुई नहीं, because they had no idea what it was. So to my shock, हम इतने indifferent हैं about our own society कि हमें लगता है कि marginalized community है ही नहीं पाकिस्तान में. So everyone thinks कि जो हम हैं बस हम ही हैं. So when I told them there is a marginalized community, they're like, what does that even mean? So they didn't know, and they were not, or ये so-called पढ़ी लिखी class थी. Yeah, apparently. So to my surprise, I was shocked. So then जब मैं artist statement लिख रहा था, so I was assuming कि हर किसी को पता होगा. But apparently not. So when I was writing the artist statement, I had to explain it. So जो आम लोग हैं, जो हमारी masses है, उनको समझ आए कि हमारी community में ऐसी community भी है जो कि acceptable नहीं है. घुट कर रह रही है. बिल्कुल, absolutely. अच्छा, अहमर, आपका जो आर्ट का स्टाइल है, what is it? मेरा style of work है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लोग मुझे कहते हैं, पूछते हैं कि आपका स्टाइल क्या है काम करने का. जी. I don't have a label for it. If you ask me, I can't say कि ये Renaissance के ज़माने का काम है या ये modern work है या contemporary work and all, because I don't. उसकी definition नहीं समझ आ रही है. I personally don't want to label it because I paint what I want. I feel. I mean, I feel around what's happening. I paint it on canvas. But normally मेरा जो काम है, that's Urdu calligraphy inspired shapes. So वो जो सारी लाइनें लगी हुई हैं ऊपर, वो सारी एक कहानी लिखी होती है उस particular topic की. So वो उर्दू के वो लफ्ज़ जो स्टाइलाइज्ड मैंने अपने स्टाइल में किए हुए हैं, बाय द वे, ये कोई ख़त इस तरह का नहीं है, ये मैंने खुद डेवलप किया हुआ है. So वो ख़त जुड़ के एक शेप बनाती है. That's very interesting. So वो जो कहानी है वो एक सोसाइटी की है या किसी टॉपिक की है, और वो फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो ये है कि वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को ही अपनी कहानी पता है, या अपने इश्यूज़ का पता है, या अपनी खुशी का पता है. वो आप जैसे मेरे बाहर के जो लोग हैं उनको नहीं पता होगा. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द कैनवस इज अबाउट. यू विल लुक एट अ वेरी वेरी प्रिटी पेंटिंग, आर्टवर्क ऑन द वॉल, बट यू वुड नॉट नो what the story is behind it unless the person who has it will tell you. It's the same way how अगर हम किसी marginalized community के बंदे को या बंदी को मिलेंगे, we would not know what's happening behind those closed doors unless that person will welcome us into their safe space. Correct. So that's the kind of अच्छा, calligraphy inspired है ये. आज मेरे लिए एक नई चीज़ दरियाफ्त हुई आपके आर्ट से मुताल्लिक. जी. So yeah, I've been कैलीग्राफी से आपको यानी कि बहुत लगाव है. I love the Urdu calligraphy की shapes. मुझे लगता है कि वो बहुत flirtatious है, because जब आप लिख रहे होते हैं वो एक flow में जा रही होती है. जैसे English लिखें रोमन अल्फाबेट्स वो एंगुलर हैं. बिल्कुल. राइट. सो उर्दू एंगुलर नहीं है, वो एक बड़ी कोई फ्लो में चलती जाती है, बस जैसे कोई. It looks very romantic. हाँ, जैसे कि वो एक कोई शेर व शायरी कर रहे हैं या कोई शेर पढ़ रहे हैं और एक खूबसूरत है. सो वहाँ से एक एक ऐसा स्टाइल डेवलप हुआ, और and it has a reason. आप जब उर्दू लिखते हैं, आपकी उर्दू कैसी है? Well, लिखने में? Well, I was when I was young, so मेरे मम्मी से मुझे बड़ी मार पड़ती थी कि तुम
सीधी तरह लिखो, ऐसा लगेगा तुमने टूटे हुए हाथों से लिख रहे हो। आई थिंक हर बच्चे का मसला है, ये सिर्फ आपका मसला नहीं था। तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही बुरी थी, सो आई थिंक मे बी वो इफेक्ट मुझे आज निकला है कि वो मैंने उसको स्टाइलाइज कर दिया, क्योंकि मेरा स्टाइल है। तो गुड वन, वेरी स्मार्ट। सो यस, अगर आप मेरी वालदा से, अभी भी मेरी वालदा जो हैं वो मेरी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हैं, वो मुझे अक्सर कहती रहती हैं, वो कभी मैं स्टूडियो में पेंट कर रहा हूँ आती हैं तो वो मुझे कहेंगे कि सही तरह से करो, ये सही नहीं तुम कर रहे। लेकिन इसका मतलब ये वो आपके काम को बहुत पसंद करती हैं। हाँ, शी लाइक्स इट एंड शी, अगर वो इंटरेस्ट ले रही हैं, इसका मतलब है कि वो फीडबैक दे रही है, तनकीद भी कर रही है, तो पॉजिटिव फीडबैक। और वो मेरे से पूछती भी है, सवाल पूछती है, इस कहानी की क्या, इस पेंटिंग की क्या स्टोरी है। अच्छा, वो एक्चुअली वो बैठ के वो इंटरेस्ट दिखाती हैं। सो मेरी सबसे पहली ऑडियंस मेरी वालदा होती हैं, एंड वो बैठ के मुझे कहती हैं अच्छा, या मैं कोई, बिकॉज कभी मेरे पेंटिंग में फिगर्स भी होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो कहती हैं इसमें कोई फिगर नजर नहीं आ रहा, एंड आई लाइक ओह अच्छा, सो मेक सेंस, आई नीड टू फिक्स इट, if she can't see it then I mean I need to fix it। और हालांकि उनका आर्ट का कोई बैकग्राउंड कोई भी नहीं, none, she's a homemaker, but she is taking interest in your art। yeah। अच्छा, फैमिली ने शुरू में सपोर्ट किया आपके आर्ट को कि नहीं? I think my family supported me as an artist more than I supported myself। Yeah, so I think maybe I'm the only artist who, because अक्सर बच्चों को डिस्करेज किया जाता है कि आर्ट की तरफ मत जाओ, खाओगे पियोगे कैसे जब बड़े हो जाओगे। My parents, my elder brother, he wanted me to go to an art school, my parents wanted me to go to an art school, my school wanted me to go to an art school after A levels, and I refused and I said I don't want to go to an art school, I want to go to business school। क्यों? I was like, I just don't want to die hungry as an artist, because ये अक्सर माँ बाप कह रहे होते हैं, और आप यहाँ पे वही कह रहे हैं ना, मेरी कहानी आपने रिवर्स कर दिया। मेरी कहानी रिवर्स रोल में थे। तो दिल है कि नहीं, कोई आर्टिस्ट भूखे नहीं मरते, आज वो पुराने जमाने के आर्टिस्ट, आजकल के आर्टिस्ट बहुत पैसे बना रहे हैं। So then I did my MBA from a business school, and then after that I kept on painting, and then I started taking it professionally, I did my shows and I started selling, and then I thought okay, so you know, एक कोई अगर पैसे खर्च रहे मेरी आर्ट के, that means they really love it and I should not waste my talent। अच्छा, कोई अफसोस होता है इस बात पे कि अगर उस वक्त फैमिली की बात सुन लेता और आर्ट स्कूल चला जाता तो शायद कुछ मुख्तलिफ होता आज ज़िंदगी में? नहीं, नो, आई थिंक बिकॉज मैंने A levels आर्ट तक पढ़ा था, सो जो कि मैंने इंग्लैंड से पढ़ा था, वो काफ़ी एक्सटेंसिव होता है वहाँ पे आर्ट, तो जितनी भी सारी बेसिक्स थी वो मेरी सारी कवर हो गई थी। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एन आर्ट स्कूल एंड स्टडिंग फॉर अनदर 4 years or 3 years, so at least आपके पास एक I have more talent। आपके पास एक डिग्री है जो ऐसी डिग्री है जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Absolutely। And then your business acumen gets sharpened। बिल्कुल, absolutely। So I think whatever I learned in business school, I also apply to my art। Like for example, I need to know मेरी target market क्या है, I need to know मेरा topic क्या है, I need to know कि research करनी है तो कैसे करनी है। So you know the business of art। I mean, not really। मेरी फैमिली अभी भी कहती है कि तुम आर्टिस्ट ही हो, you're not a businessman। लेकिन आर्टिस्ट कभी बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता। यही है, because I will paint and then I'm very bad at selling art। So I work with different galleries and I let them do the business of art। एक बात बताइए, ये थोड़ा सा मिस्चीवियस सा सवाल है, इसलिए मुझे अक्सर होता है कि लोगों की ज़रा आदत है ना, पाकिस्तान में खासकर ज़्यादा, कि डिस्काउंट दे दें, थोड़ा कम कर दें। तो आई एम श्योर पेंटिंग लेते वक्त भी लोग थोड़ी सी तो बहस करते होंगे। That's nothing। बहस तो फिर भी चलो आपके मुंह पे करते हैं। There have been times when people have bought painting and through a gallery and then अगर लेट्स से कि अगर 10,000 की पेंटिंग है तो उन्होंने सिर्फ 8,000 ही दिए हैं कि जी बाकी मैंने डिस्काउंट ले लिया, मैंने खुद ही ले लिया, खुद ही डिस्काउंट ले लिया। और वो लोग आपको जानते थे? आई थिंक सबसे ज्यादा डिस्काउंट वही लोग मांगते हैं जो आपको जानते हैं। हाँ, I mean someone who doesn't know you would never ask you and for a which is so discount। wrong कि क्योंकि आपको अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए उनके काम। Absolutely। and I think it's दोस्त के तौर पे, रिश्तेदारों को तो छोड़ ही दें, दोस्त के तौर पर एटलीस्ट आप ये मुझे लगता है कि आप इस तरह सपोर्ट करें कि डिस्काउंट ना मांगे। मुझे लगता है कि इवन एज लाइक डिस्काउंट के अलावा मुझे लगता है कि सपोर्ट के अलावा भी आई फाइंड इट ऑफेंसिव कि एक आर्टिस्ट है, वो इतनी मेहनत कर रहा है,
and he's put in heart and soul in that one piece. And आप उस पे भी आप अगर डिस्काउंट मांग रहे हैं, that's painful. It is painful. और especially अगर because art is a luxury good, right? Only rich people buy art mostly. So they will have a massive house, huge house, जो कि लाखों करोड़ों रुपए के घर बनते हैं आजकल, और वो सैनिटरी एक सिंक बाथरूम में आपकी पेंटिंग से ज़्यादा शायद महंगी होगी। हाँ, वो इटली से आ रहा होगा। वो इटली से आ रहा होगा, यहाँ कोई फ्रांस से आ रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा। They will spend a lot of money on that, but when they want a painting from you, they're like, अच्छा बहुत महंगी है, and it's something which is made from hand and which has. फिर ये वही लोग डिस्काउंट मांगते हैं जिनको आर्ट की कदर नहीं। Yeah, absolutely. But I mean it just surprises me कि वो पैसे का मसला नहीं है. It's not they don't have money. It's just maybe आदत से मजबूर होते लोग. आदत से मजबूर। और वो सिर्फ पेंटिंग इसलिए लगानी है, घर बना लिया बड़ा, पेंटिंग लगानी है, लेकिन आर्ट की कोई कदर नहीं। बस मैं फिर उनको कहता हूँ कि आप ऐसे करें कि आप मेन मार्केट से जाके आप खरीद रहे हैं पेंटिंग जो कि रेप्लिकास मिल रहे हैं। I mean जरूरी नहीं है कि बिकॉज वो भी आर्टिस्ट ही बेचारे बना रहे हैं, डिस्काउंट मांगे तो वो वहाँ पे भी आप एक अफोर्डेबल आर्ट आपको मिल जाएगी। आपने दीवार भरनी है तो आप वहाँ से ले लें, बिकॉज दिस इज एन आर्ट पीस, देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, देयर इज रिसर्च डन बिहाइंड इट एंड सो। अच्छा अहमर, पाकिस्तान में अब आज के ज़माने में, आज के दौर में, क्या आपको लगता है अब आर्टिस्ट की कदर होना शुरू हुई है? पहले से बहुत बेहतर है। बेहतर है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं। मुकम्मल बिल्कुल भी नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ एंड इफ़ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, सो जो इज्जत मिलती है वहाँ पे, वो रिस्पेक्ट लेवल ही अलग है। वो फ़र्क है। मैं खुद, बिकॉज आपको आदत नहीं रहती ना पाकिस्तान में रह रहे, आप किसी को कहेंगे आर्टिस्ट है तो वो सबसे पहले कहेंगे वो अच्छा है, गरीब सा है, ये रहने दो, इससे क्या बात करेंगे, होगा, तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते आपको। बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर आप चले जाएं, आप वही, हालांकि शायद आप बहुत सारे और लोगों से ज्यादा पैसे बना रहे होंगे। या एब्सोल्युटली। बट अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएं कहीं पे भी, आप टेल देम यू आर एन आर्टिस्ट एंड दे गेट द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट इज डिफरेंट। इट्स नॉट दैट दे विल बाय आर्ट, बट जिस तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा। दे लाइक वो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आई वाज इनवाइटेड टू द जर्मन एम्बेसी फॉर द जर्मन नेशनल डे, सो देयर वाज अ ड्रेस कोड, इट हैड टू बी फॉर्मल. So they specifically told me that you don't have to follow the dress code because you're an artist, so you can wear whatever you would like. How amazing is that? And I was like, oh my god, मैं तो बस sleeping suit में चला जाता like this is my look. But मेरा मतलब कि उन्होंने इतनी इज्जत दी कि उन्होंने कहा कि आप आर्टिस्ट हैं तो आप जिस तरह आप आना चाहते हैं, that's just for you. Everyone else was wearing suits. That's quite a privilege. So I mean at a black tie affair. हाँ. अगर आपको इस तरह दावत दी जा रही है तो यानी कि आपको बहुत इज्जत दी जा रही है और आपको खास ट्रीट किया जा रहा है. And then when you tell them you're an artist, they're interested in knowing about you, your story, what kind of work you do, and they're fascinated, and it seems genuine too. ये नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान में हम बस खाना पूरी, अच्छा ओके ठीक है आप आर्टिस्ट हैं, ओके असल में क्या करते हैं आप? You know, I also get this question all. अच्छा, must be really heartbreaking, Ahmer. और ये तो मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन दिल टूटता होगा इस बात पे. Of course, I mean it is, and you know, because यहाँ पे काफी लोग एक तो आर्ट को प्रोफेशनली लेते भी नहीं है, और यहाँ पे एज ए आर्टिस्ट होना, एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना भी मुश्किल भी है, क्योंकि यहाँ पे उस लोग को सीरियसली नहीं लेते हैं. तो इसलिए जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में, वो सब बाहर जाके शोज करना चाहते हैं और कर रहे हैं. आपका कोई ऐसा इरादा बाहर एग्जिबिट करने का? अभी मैंने पिछले साल अमेरिका में शो किया था एट पाम बीच. लेकिन अब इस साल क्या? So I have another show coming in Europe, so it's a traveling show, so that's happening, and then I'm also in talks with another gallery in America for this coming show. वो बहुत अच्छा रहेगा. So वो एक ये भी फायदा होता है कि वहाँ पे एक तो करेंसी चेंज की वजह से भी बहुत फायदा होता है, बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा से ये भी है कि वहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू मिलती है, नॉट जस्ट, और अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा. एब्सोल्युटली, दे टेक यू मोर सीरियसली. लाइक फॉर एग्जांपल अभी पिछला आर्ट शो था, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट मनी, सो आई सेंट देम, दे सॉ माय वर्क एंड दे लव्ड इट, और वो एक बस रज़ाई का कवर था, and they loved it, and they said we want to be, you know, we want you to be part of our show, and then we want this piece. और and then everyone was making fun of me. क्या मतलब रज़ाई तुम भेज रहे हो वहाँ अमेरिका की गैलरी में? तो रज़ाई की तरह देख रहे होंगे ना उसे, पर उधर उसे एज आर्ट पीस देख रहे होंगे. और
उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले किया. People were fascinated. Yeah. They wanted to talk about it, and naturally there was a concept behind it. It was about forced marriages in Pakistan. That how हम शादियों में जहेज देते हैं और उसमें रज़ाई का भी एक हिस्सा होता है, एलिमेंट होता है कि वो भी जाने. Not talking about the high class people, I'm talking about the masses. Generally, जो most of the population. So that spoke about that. So it was again उसके अंदर भी मैंने अपनी calligraphy जो which is my signature style. और ये जो आप 2% की बात करें, इसमें भी जहेज कोई एलियन चीज नहीं है, इसमें ज्यादा जहेज दिया जाता है. काफी अक्सर. Really, I didn't know that. I thought कि अब हम पढ़ लिख गए हैं तो. I mean, it's given a lot, and it is expected to bring it. काफी खाना. Okay, that's something I didn't know. I thought कि शायद अब हम पढ़े लिखे लोग हो गए हैं तो एटलीस्ट इससे नहीं, जो ट्रू सेंस में अब देखें ना, पैसा होना और ट्रू सेंस में पढ़े लिखे होना बहुत मुख्तलिफ चीज़ है. अच्छा. तो जो असल पढ़े लिखे लोग हैं शायद उनके पास इतना पैसा ना, वो नहीं मांगेंगे. ओके. लेकिन बहुत अमीर लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अक्सर. और मैं जनरल बात कर रही हूँ. ओके. आई मीन ऐसा ऑब्जर्व किया गया. आई एम श्योर कोई ऑप्शंस कोई होंगी लोग जो नहीं करते होंगे, बट बहुत आई एम श्योर कम ही होंगे जो ऐसे होंगे. वरना नॉर्मली लोग कहते हैं कि नहीं, बस हम अपनी बेटी के लिए उसकी खुशी के लिए हम दे रहे हैं. बट दे नो एग्जैक्टली व्हाई दे गिविंग इट, एंड दे नो एग्जैक्टली व्हाई दे taking it. Yeah. So यहाँ पे वही मैं कहता कि हमारे मुल्क में. So I'm very glad you did a show. Like, I mean, you had a piece on that. And you know, I spoke about it and everything. Of course, for the American market, it was a bit unheard of because they couldn't really relate to it because they didn't go through it. क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं ये? And so but then I had to do a write-up. और फिर मैंने write up लिखा, so the gallery had to rewrite it for the American audience. Right. Because they said कि हमें उन American audience को समझाना पड़ेगा. आपने तो लिख दिया जो कि पाकिस्तान में हर किसी को समझ आ जाएगा कि एक डाउरी सिस्टम है, और उनको तो शायद डाउरी का पता ही नहीं होगा कि डाउरी कोई चीज लफ्ज़ भी है. क्या कर रहे हैं ये लोग? But anyway, चले. But it was well received. Well received. Yeah. And but ever I wish you all the best for Thank this. You. Yet another amazing show that you're planning, जो 6 मई को होने वाला है. And मैं ज़रूर क्रेडिट यहाँ पे पाकिस्तान आर्ट फोरम को भी दूंगी, जो इम्तिसाल ने शुरू किया और बहुत सारे आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी दी, और बल्कि ऑडियंस को अपॉर्चुनिटी दी कि वो आके कुछ बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट देख सके. So one thing I want to talk about Pakistan Art Forum here is it's a platform जो कि it's a unconventional platform जो कि नए आर्टिस्ट को प्रमोट करता है. It gives a platform to young Pakistani artists. Yes. So जो कि normally galleries नहीं देती हैं because art is a club. Either you're part of a club or you're not part of a club. Lobby कह लें थोड़ी. Lobbying कह लें. So I wanted to sound less politically. नहीं, अब जो सही है, जो गलत है, या जो है, जो नहीं है वो नहीं है. वो जो है वो है. So you know, Pakistan Art Forum has given that platform to so many artists. Yes. So many young artists, and they have gone places. और वो वहाँ पे हर किस्म की आर्ट डिस्प्ले की जाती है. वहाँ पे सीनियर आर्टिस्ट का भी काम होता है और वहाँ पे नए आर्टिस्ट का भी काम है. तो वहाँ पे वो नहीं है कि जी हम सिर्फ सीनियर लोग. बड़े यूनिक पीसेस हर दफा मैं तो जब भी जाती हूँ एब्सोल्युटली नजर आते हैं, और जो अमूमन आपको हर गैलरी में नहीं नजर आ रहे. बिल्कुल. और आर्ट होनी भी ऐसी चाहिए कि यू नो व्हेन यू आर बिल्डिंग योर आर्ट कलेक्शन इट शुड रिफ्लेक्ट यू एंड नॉट कि आप सिर्फ लेबल्स ना खरीदें कि ये फलाना आर्टिस्ट है, ये फलाना आर्टिस्ट है. So the credit has to be given to Pakistan Art Forum on that. Yes, and again, best wishes, best of luck. Thank you. And मैं ज़रूर आऊँगी आपका शो देखने. You must come and you must buy art too. You must buy art too. Of course, yeah. of course. Yeah, thank you. And just steel sculpture, I'm very excited to see. I'm excited. I'm actually. And I really want to see it. No, that's my favorite piece from the show. वो सुनने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रहा है. So I'm getting excited making it. Yes. So I'm sure वही प्यार मोहब्बत जिससे आपने उसे बनाया होगा वो वैसा ही खूबसूरत होगा. Thank you. Thank you so much. Thank you, Hina.